Welcome to this Monday edition of Market Month, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav. And with me is my co-anchor, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं आमंत्रित। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 या फिर 2331-0464। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। We begin with the headlines. In Indian stock market, Sensex slips over 100 points. Nifty closes below 22,120. Most Asian indices register gains. European indices trade in positive territory. And financial awareness among women rose by 42% from the previous year, highlights Niti Aayog report. घरेलू शेयर बाजार में आज दिखी नरमी। सेंसेक्स 100 अंक से अधिक लुढ़का। निफ्टी 22,120 के नीचे आकर हुआ बंद। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में दिखी लिवाली। यूरोपीय बाजारों में भी दिख रहा है तेजी का रुख। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार देश की महिलाओं के बीच वित्तीय समझदारी 42% बढ़ी। हमारे साथ कार्यक्रम शुरू होते ही बहुत सारे श्रोता जुड़ चुके हैं। आप सबों का हम स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि जब तक हम आपको शेयर बाजार लिए चलते हैं तब तक आप धैर्य के साथ फोन लाइन पर बने रहिए। घरेलू शेयर बाजार में आज थोड़ा सा मिला जुला रुख दिखा है, हालांकि फ्लैट स्टोन अधिक रहा। सेंसेक्स और निफ्टी पैक की प्रमुख कंपनियां थोड़े घाटे में रहीं। उधर मझोली कंपनियों के शेयरों में खरीदारी भी की गई। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 112 अंक घटकर 73,086 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 5 अंक कम होकर 22,119 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.25% लाभ के साथ बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% की गिरावट हुई। In the Indian stock market today, Sensex ended with modest losses while Nifty settled on a flat note. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, dropped 112 points to close at 73,086, and the National Stock Exchange Nifty 50 fell marginally by 5 points to settle at 22,119. The broader market indices at the BSE ended mixed. The mid-cap index added 0.25%, while the small-cap index slipped 0.7%. In the Sensex index, 18 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Ultratech Cement rose over 2.2%, Bharti Airtel increased over 1.7%, and Infosys added almost 1.2%. Conversely, among the top laggards, Reliance dipped more than 2.3%, Bajaj Financial Services slipped over 1.8%, and HDFC Bank dropped over 1.7%. In the sectoral indices at the BSE, 16 out of 21 sectors ended up. In the top gainers
capital goods as well as power both advanced over 1.5% each. Consumer durables rose 1.24% and realty added almost 1.1%. Among the top laggards, energy lost 1.1%, financial services slipped over 0.5%, and oil and gas fell 0.5%. Meanwhile, overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,852 companies declined, 1,235 advanced and 147 remained unchanged. At the NSE, the National Stock Exchange, 12 companies hit their 52-week high, while 963 hit their 52-week low. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 15 पैसे बढ़ा, 87 रुपए 36 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 106.99 पर कारोबार कर रहा था। और हमारे साथ काफी धैर्य के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं दिल्ली से अरुण जी। अरुण कुमार जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी, आप जुड़े हुए हैं, सवाल पूछिए। हाँ सर, मार्केट अभी कंटिन्यूअसली काफी दिनों से गिर रहा है जी, और 15% से ज्यादा निफ्टी 50 डाउन हो गया है। तो अभी आपको नेक्स्ट क्या लेवल्स दिख रहे हैं निफ्टी के, और उसके रिलेटेड स्मॉल कैप और मिड कैप कैसा दिख रहा है? अगर आप ब्रॉडली बताएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, शेयर बाजार की स्थिति को लेकर के कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हर लेवल जो दिख रहा है वो कुछ दिनों के बाद वो एक नया लेवल बन जाता है और फिर एक नए लेवल के लिए हमें सोचना पड़ता है। अभी के समय में अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो निफ्टी जो है वो 22,119 पे बंद हुआ है। ताजा जो लेवल सोचा जा रहा है वो 21,500 से लेकर के 22,000 के बीच में उम्मीद की जा रही है कि यहां पे आकर के एक कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। जहां तक मिड कैप और स्मॉल कैप की बात है, देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप्स में जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन मिड कैप्स की स्थिति थोड़ी बेहतर दिख रही है स्मॉल कैप के मुकाबले। स्मॉल कैप में हम आने वाले दिनों में ज्यादा गिरावट देखेंगे और उसकी एक वजह यह होती है कि स्मॉल कैप का वॉल्यूम जो है वो उतना नहीं होता है जिस तरीके के आप लार्ज कैप या मिड कैप में देखते हैं। तो आने वाले दिनों में स्मॉल कैप में हम ज्यादा गिरावट देख सकते हैं, ऐसी आशंका है। लेकिन मिड कैप में थोड़ी सी बेहतरी हमें देखने को मिली क्योंकि कई कंपनियां वहां पे बुनियादी तौर पर काफी मजबूत हैं। हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़े हुए थे लेकिन वापस क्यों चले गए ये हम पूछना चाहते हैं आपसे। हमारा नंबर आपको पता है, धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहिए जब तक आपके प्रश्नों का हम जवाब नहीं देते हैं। बहरहाल आइए अभी आपको लिए चले अब वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां प्रमुख 5 में से 3 सूचकांक आज बढ़त में रहे हैं। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.6% से अधिक लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.34% की तेजी आई। हांगकांग का हैंग सेंग 0.3% बढ़त के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.12% फिसल गया। दक्षिण कोरिया में सार्वजनिक अवकाश के कारण शेयर बाजार बंद रहे। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार करते समाचार तैयार किए जाने तक दिख रहे थे। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 1% से ऊपर कारोबार कर रहा था। फ्रांस का कैक 40 0.7% से अधिक ऊपर चल रहा था। लंदन के FTSE 100 में भी 0.5% से अधिक की बढ़त थी। And we have our next caller from Kolkata. We are joined by Atanu Shah. Atanu, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Am I audible, sir? Yes, sir, you are. Yes. Sir, my question is the future of warehousing, mainly food warehousing. अतनु जी एक सुझाव, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं मिल रही है। अपने माइक्रोफोन को फोन से बात कर रहे हैं तो जरा नजदीक आके बोलिए। Food warehousing, mainly private sector and also public sector. The future and how our government organizing it and helping to do it forever. See, the warehousing sector, or rather in a very layman language, what we call as the go down or the storage capacity, there have always been a problem that as compared to the requirement, the go down capacity or the warehousing capacity have been very low. And government is trying
government is trying through various means, especially say recently they talked about developing the warehousing capability in the cooperative sector. I mean, the cooperative societies will also be encouraged to develop the warehousing facility. So the government and private sectors both are doing something, but as of now, the real issue, the real challenge is that to meet the demand, the capacity of warehousings are very low, and there we have to work on that from both government side as well as the private sector side. यहाँ पर शिशिर, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे शेयर बाजार की ओर। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम एक लेवल तय सोचते हैं और तुरंत पता लगता है कि ये जो हमारा स्तर था वो वहां टिक नहीं रहा है। कुल मिला के वैश्विक परिस्थितियां बड़ी ही फ्लूइड सी हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी कहीं आपको लग रहा जहां स्मार्ट गेन किया जा सकता है, अपनी होशियारी से हम कुछ बेहतर कमा सकते हैं, उस पर थोड़ी सलाह दीजिए। और अगले श्रोता हमारे साथ गौरव हैं। गौरव जी लाइन पर बने रहिएगा, इस जवाब के बाद आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि बाजार में कहते हैं ना, दो तरह की परिस्थितियां होती है। एक हम लोग कहते हैं सपोर्ट लेवल और एक कहते हैं रेसिस्टेंस लेवल। रेसिस्टेंस लेवल तब आता है जब बाजार ऊपर जा रहा होता है, और सपोर्ट लेवल तब आता है जब नीचे जा रहा होता है। रेसिस्टेंस लेवल है कि वहां पर प्रतिरोध हो जाती है कि इससे आगे हम बढ़ने नहीं देंगे, और सपोर्ट है कि जहां तक गिर रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकना है। हमने पिछले 5 महीनों में जो बाजार की परिस्थितियां देखी, उसमें जिस तरह की गिरावट आई है, वहां पर सपोर्ट लेवल हर 2 दिन के 5 दिन में बदल जा रहा है। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है ये है समझना कि बाजार आखिरकार कहां पे जाकर के रुकेगा। मुझे याद है कि जब 23,000 के नीचे आया था तो लोगों ने कहा कि अब बाजार जो है अपने गिरावट के निचले असर पर बॉटम आउट होने जा रहा है। अब 22,000 के नीचे आ रहा है तो फिर कह रहे हैं कि अब बॉटम आउट हो चुका है। तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि कहां तक जाएगा। लेकिन जहां तक आपने एक क्षेत्र विशेष की बात की है, तो मुझे लगता है कि 2 सेक्टर जहां पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश रहता हूं, एक फाइनेंशियल सेक्टर जो है वहां पर मुझे थोड़ी सी स्थिति लगती है, खासतौर पे जैसे जैसे देखिए रेपो रेट कम हुआ है, ब्याज दर में गिरावट आएगी तो बैंकों की ओर से कर्ज देने की रफ्तार बढ़ेगी, और जब कर्ज देने की रफ्तार बढ़ेगी तो उनके लिए बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी ओर छोटी बचत योजनाओं को लेकर के जो बैंकों की हमेशा शिकायत रहती है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर ज्यादा है, हमारा ब्याज दर कम है, तो लोग हमारे पास आते नहीं है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब मार्च, ये जो महीना चल रहा है, इसके आखिर में जब छोटी बचत योजनाओं पर फैसला होगा तो शायद वहां ब्याज दरें घटा दी जाए, तो बैंकों के लिए जमा जुटाना आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी सी स्कोप ज्यादा है। और दूसरा जो सेक्टर है जहां पर मुझे लगता है काफी संभावना है, वो है डिफेंस सेक्टर। तो इन 2 के ऊपर हमें नजर रखनी है। दिल्ली से हमारे साथ गौरव हैं। गौरव जी, आप मेरे ख्याल से दोबारा जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए। जी नमस्कार। तो मेरा क्वेश्चन है, करंट मार्केट सिचुएशन में जिस तरीके से पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है, तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए? क्या हमें एग्जिट कर देना चाहिए या एवरेज डाउन करना चाहिए? आपने गौरव जी, आपने जो सवाल का दूसरा हिस्सा था वही आपका जवाब है। एवरेज करना एक अच्छी रणनीति है, और मेरी सलाह ये भी रही है कि कहते हैं ना कि आपके पास हर तरह के स्टॉक होने चाहिए। किसी एक खास क्षेत्र में आप लगा रहे हैं या 2-4 कंपनियों पे लगा रहे हैं, उसको आप एक्सपैंड करें। दूसरा ये भी है कि जब कभी भी आपके पास अतिरिक्त इनकम है, आप एसआईपी के जरिए बढ़ाने की कोशिश करिए। एसआईपी को लेकर के लोगों के मन में बहुत आशंका है, इतने पैसे डूब गए, लेकिन आप याद रखिए कि वो नोशनल लॉस है। आपका अगर मूल बचा हुआ है तो फिर आपको चिंता करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग यूनिट है वो कम हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ बाइंग यूनिट कम होगा तो थोड़ी भी बढ़त अगर बाजार में आएगी, उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो 2 आपके लिए सुझाव। पहला तो ये कि आप ज्यादा से ज्यादा एवरेज करने की कोशिश करें, और पोर्टफोलियो को आप जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हो उतना बेहतर है। दूसरा सुझाव ये है कि एसआईपी अगर आपने खोल रखा है उसमें कंटिन्यू करें, और जरूरत हो तो एक आध एसआईपी और भी आप कर सकते हैं। And we are joined in by Saurabh from Hyderabad. Saurabh, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Good evening, Market Mantra. I wanted to ask a very general question to the expert. How will the growth of digital payments and the fintech in India affect the traditional banking and financial services? Thank you. I will just take you. I will give you just example of Mahakumbh. You know, during Mahakumbh, maximum transaction took place only through the digital mean. So, and that is clearly reflected in the GST collection of UP. If you see the GST collection of Uttar Pradesh per se, if I compare with the 2024
The rise is almost 1,000 crore rupees in GST collection alone. अंदाज लगा सकते हैं श्रोता in this month only. Why this collection is very high? There are two reasons. One, of course, the consumers are more. And the second thing is more and more consumers are using digital means. That means the formalization of economy also helping in that way. You are talking about the traditional mean. I believe that you are talking about the conventional banking. See, as of now, we do not see the kind of danger to the conventional banking system. Of course, the digital means, all the banks are providing you the digital mean. If you are making payment through your QR code, it is attached to your bank account. So the conventional banking will be there, but the conventional banking will have to innovate according to the need. And that is what they are doing, and that is what we are seeing the result in the Mahakumbh. आइए चलें कोलकाता, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं तापस, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। This is Tapas Chakraborty from Kolkata. So, good evening, sir. Good evening. Good evening, all of you. Sir, I have two questions, different questions. One is the medical insurance, Mediclaim. That 80% GST, there are so much of discussion, everything is there. Finally, ये नहीं हुआ. जो सीनियर सिटीजन उसको 18% GST 1.7, 1.8, 1.9 ऐसा माफिक every year, every month that is increasing. But 8% GST ये अभी तक क्यों चल रहा है? ये जो सीनियर सिटीजन उसको कैसे हो देगा? नंबर 2 जो है, जो हमारा क्वेश्चन है, वो है EPFO पेंशन. ये लेके भी बहुत दिन से बात हो रहा है जे ये 1000 से 7500 होगा. ये भी 2-3 साल से चल रहा है और ये भी पेपर में भी आ रहा है, ये लेके बात हो रहा है. ये थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे तो अच्छा लगेगा सर. तापस सर, जो आपने पहला सवाल पूछा है मेडिक्लेम को, हेल्थ इंश्योरेंस का, वो 18% जो जीएसटी की दर है वो वाकई में काफी ज्यादा है. इसको लेकर के एक मंत्रियों का समूह बनाया गया था, राज्यों के मंत्रियों का, जिन्होंने सिफारिश भी की थी कि खासतौर पे जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए इसको छूट दी जाए, लेकिन उस पर कोई फैसला अभी नहीं हो सका है. हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगली जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जो उम्मीद है कि इस महीने में हो या ज्यादा से ज्यादा अगले महीने हो, तो शायद इस बारे में कोई न कोई फैसला निकलेगा. लेकिन आपकी चिंता बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही जायज है कि जहां पर 18% है और 100 रुपए पे आप 18% केवल आप प्रीमियम पे देते हैं, तो आपका प्रीमियम का जो बर्डन है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है. दूसरा ईपीएफओ वाले में है. ईपीएफओ वाले में अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हुई थी और उसमें इस बारे में चर्चा भी की गई थी, लेकिन फैसला नहीं हुआ. शायद वो कुछ और मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं और उसके बाद ही ये पेंशन बढ़ाने का फैसला जो है वहां देखने को मिलेगा. And our next caller is from Mumbai. We're joined in by Paras. Paras, welcome to Market Mantra. Please ask your question. पारस, सबसे पहली सलाह तो आप अपने रेडियो की आवाज धीमी कर लें. आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए. हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछें. हाँ, मुझे मार्केट में समझो ऑप्शन ट्रेडिंग में आगे करियर बनाना होगा, तो ट्रेनिंग के लिए क्या कर सकते हैं? पारस जी, अगर आप इस बाजार में अपने आप को देख रहे हैं भविष्य में, तो आपको NISM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, वहां से सर्टिफिकेट लेना होगा. और जब आप सर्टिफाइड होंगे तो फिर आपके लिए इस क्षेत्र में आपके पास संभावनाएं काफी बेहतर होगी. उसके पहले अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है या मैनेजमेंट बैकग्राउंड है या स्टैटिस्टिक्स से आपने किया है, तो आपके लिए इस चीज को समझने में आपको सहूलियत होगी. मुंबई से लौट रहे हैं दिल्ली, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं प्रीतम जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए. प्रीतम, आप जुड़े हुए हैं हमसे या संपर्क हमारा टूट गया? प्रीतम जी, आप नमस्कार, बहुत समय आपने लिया, स्वागत आपका, सवाल पूछें. सर, मैं पता करना चाह रहा था, अब जी हिसाब से मार्केट में उठापटक चल रही है लगातार, काफी टाइम से चल रही है. बाहर के लोग यहाँ से पैसा निकाल भी रहे हैं, तो यहाँ के इन्वेस्टर्स पे कब तक ये मार्केट हमारी टिक सकती है? क्योंकि कुछ तो मतलब सपोर्ट चाहिए ही होता है, क्योंकि हमारा काफी माल बाहर जाता है, तो कुछ काफी माल बाहर से आता भी है, तो डॉलर भी लगातार बढ़ रहा है और रुपया भी हमारा घटता जा रहा है, तो कुछ हमारे पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्या?
देखिए, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि विदेशी निवेशक काफी पैसा निकाल रहे हैं और घरेलू संस्थागत निवेशक या घरेलू निवेशकों की बदौलत शेयर बाजार में जो कुछ भी गतिविधियां हैं उसमें उनका बड़ा हिस्सा रहा है, बड़ी हिस्सेदारी रही है। ये एक चिंता का विषय जरूर है कि विदेशी निवेशक इतना पैसा निकाल रहे हैं और इनके पैसा निकालने पर कब तक रोक लगेगी। इसमें कई सारे तथ्य हैं। अगर एक मैं तथ्य स्पष्ट कहूं तो शायद मुश्किल होगा। जैसे अब ट्रंप साहब की क्या नीति आती है वो निर्भर करता है। ब्याज दर को लेकर के रिजर्व बैंक की नीति क्या होती है, फेडरल रिजर्व की नीति क्या होती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ती है। अभी हमने जो तीसरी तिमाही के नतीजे देखे आर्थिक विकास के, वो काफी बेहतर आंकड़े थे, 6.2% का। और अगर बीते साल की विकास दर की बात करें तो वो 9.2% है। विकास दर के मामले में स्थिति बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हमारा आपका नियंत्रण नहीं है। अब ट्रंप साहब क्या करेंगे इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। वो कहां पे बढ़ाएंगे, कहां घटाएंगे, कहां रोकेंगे, हमें नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक स्पष्ट कहते हैं ना वक्तव्य देना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि हमारी जो बुनियादी चीजें उसमें कमजोरी नहीं है, हमारी परिस्थिति इतनी कमजोर नहीं है। हमारी दिक्कत यह है कि बाहर के जो एलिमेंट्स हैं, बाहर के जो तत्व हैं, वो हम पर ज्यादा उनका रोल रहता है। तो उसकी वजह से आप ये बाजार का हाल देख रहे हैं। यहाँ पर शिशिर जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके आकार पर, और जो हमारे यहाँ जनसंख्या भी है और उसके अलावा हम खपत भी कर रहे हैं, और हमारी व्यवस्था सिर्फ निर्यात पर आधारित नहीं है जैसे दुनिया की कुछ देशों की होती है। वहां हमारे लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, यानी जो गिरते हुए माहौल में जो कुछ उज्जवल, यानी जिसको सिल्वर लाइनिंग कहते हैं, वो कहां देख रहा है? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था कहते हैं ना 5 डी पे चलती है जी। पहला डी तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि 65% आबादी जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम की है। दूसरा जो डी है वो है डेमोक्रेसी, यानी कि फैसले लेने की प्रक्रिया में एक लोग जो है उनकी अहम भूमिका होती है। तीसरा जो है वो डी, वो है डिमांड, यानी कि मांग काफी ज्यादा, जिसकी आपने चर्चा की, हम इतनी बड़ी आबादी वाले देश हैं। चौथा जो डी है वो है डाइवर्सिफाइड मार्केट, यानी कि कहते ना कि हर कोस पे पानी और भाषा बदल जाती है, तो बाजार भी बदल जाता है। अगर आप दिल्ली से निकल के हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा में अलग है। अगर हम उत्तर प्रदेश जाते हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में हम अगर लखनऊ के आगे बढ़ते हैं तो अलग परिस्थितियां होती है, वाराणसी के आगे बढ़ते हैं तो अलग परिस्थितियां होती है। तो ये जो विविधीकरण है मांग में, ये हमारा चौथा डी है। और पांचवा जो डी है वो है डिजिटल, यानी कि जितनी भी व्यवस्था है उसमें डिजिटल की वजह से जो लेन देन की लागत है वो कम हो रही है। तो इन 5 चीजों की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन जैसा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्या है कि हम ये सोचे कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे, नहीं हो सकता है। दुनिया में क्या हो रहा है वो हमें प्रभावित करेगा। और आज के दिन में चाहे वो यूएस की हम बात करें, यूके की बात करें या यूरोप की बात करें, जहां पर मंदी की सुगबुगाहट है यूके में, और यूके में नहीं कहना चाहिए, यूरोप में है, वो हमारे लिए एक चिंता का विषय, क्योंकि हम सामान जो बनाएंगे वो बेचेंगे कहां। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रख के अर्थव्यवस्था का आकलन करना चाहिए। And now moving towards the next story, the financial awareness among women has increased by 42% from the previous year. This was stated in a report titled From Borrowers to Builders, Women's Role in India's Financial Growth Story, which was launched by Niti Aayog in New Delhi today. According to the report, around 27 million women were monitoring their credit till December last year. Launching the report, CEO of Niti Aayog, BVR Subramaniam, highlighted the critical role of access to finance in empowering women entrepreneurs. The report shows that women's share of the total self-monitoring base increased 19.43% in December last year, compared to 17.89% in 2023. It mentioned that more women from non-metro regions are actively self-monitoring their credit compared to those in metro areas, with a growth of 48% in non-metro regions and 30% in metro areas. आइए आगे बढ़ें। सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खान पान तथा पर्यटन निगम IRCTC को नवरत्न का दर्जा दे दिया है। रेलवे वित्त निगम रेल मंत्रालय का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। इसका वार्षिक कारोबार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक है। IRCTC भी रेल मंत्रालय का एक केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम है। इसका वार्षिक कारोबार 4,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिलने पर बधाई दी है। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुछ विदेश से संबंधित भारतीय खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवोट के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान उन्होंने बेल्जियम के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, उद्योग, शिक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, नवाचार और संस्कृति के क्षेत्रों में अच्छे और स्थिर संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वे सेमीकंडक्टर, एआई, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल गतिशीलता और रक्षा के क्षेत्र में भी द्विपक्षीय संबंध को प्रगाढ़ करने पर चर्चा कर रहे हैं। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will embark on an official visit to the United Kingdom and Ireland from tomorrow. According to External Affairs Ministry, India and the UK share a comprehensive strategic partnership, and the bilateral relations have strengthened across diverse areas, including defence, security, trade, economy, health, education, and people-to-people ties. During the visit, the External Affairs Minister will hold discussions with his counterpart, Foreign Secretary David Lammy, and will meet several other dignitaries. During this two-day visit to Ireland, Dr. Jaishankar will meet with his Irish counterpart, Simone Harris, and other dignitaries. शिशिर जी, आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। जो रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई दो कंपनियां हमारी हैं, उनको नवरत्न का दर्जा मिलने पर क्या दर्शा रहा? ये इनकी बढ़ती हुई क्षमता को दर्शा रहा क्या? यानी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए और रेल तंत्र के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसके और आयाम क्या देख रहे हैं आप? अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, IRFC को नवरत्न का जो दर्जा है वो आज दिया गया है। जी। बाकी जो कंपनियां हैं उनके लिए वो पहले से स्टेटस है। नवरत्न बनने का फायदा क्या होता है? नवरत्न बनने का फायदा ये होता है कि आपको कई तरह की वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है, कई तरह के जो फैसले होते हैं निवेश करने के, उसमें आपको मदद मिलती है। मैं इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करूं, आमतौर पे हम इस कार्यक्रम में एक खास कंपनी की चर्चा नहीं करते, लेकिन चूंकि यहां पर एक इनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो जब कभी किसी कंपनी का नवरत्न बनना होता है तो इसका मतलब है कि वो बाजार से ज्यादा आसान शर्तों पे, आकर्षक शर्तों पर पैसा जुटा सकता है। और IRFC के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि वो रेलवे और के कई परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन जुटाने का काम करता है। तो नवरत्न बनने से रेलवे की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो संसाधन है वो जुटाने में मदद मिलेगी। आइए चले मुंबई, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुब्रमण्यन। स्वागत है आपका सुब्रमण्यम, सवाल पूछें। हाय, गुड इवनिंग सर। स्वागत। या सो what is your advice for an young investors who had actually entered recently to the equity stock market like last 6 months, because they might have not seen this historic cycles, right, where the share markets have crashed in 2008 or 2020 during COVID. So what is your advice? Like, because some shares have gone down by 30%, 50%, 60% also. So I got your point. There are always two sides of the coin. When the prices are low, you are getting an opportunity to enter. When the market is down, you think, oh, where it's going to stop. So there is always there are always two sides of the coin. My advice would be that since you have entered recently, and many of the quality stocks are at a very attractive price, so go for investing into those things and have a patience. I mean, have a patience means you should you should be invested in those companies for at least 3 to 5 years. And moving over to our next story, oil prices edged up today as investors await outcome of efforts to end the Russia-Ukraine war and repercussions from US tariffs. Brent crude was trading over 0.2% up at around $72.97 per barrel. A WTI crude was trading nearly flat at around $69.82 per barrel when reports last came in. आइए चलें सर्राफा बाजार। सर्राफा बाजार में आज सोने की चमक थोड़ी तेज दिख रही थी। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.94% बढ़त के साथ 85,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 1.6% बढ़कर 95,780 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। MCX पर चलें तो वहां अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.9% बढ़त के साथ 84,981 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उधर मार्च 2025 में आपूर्ति होने वाली चांदी 1.37% चमक के साथ 94,156 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शिशिर जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. In Indian stock market, Sensex slips over 100 points. Nifty closes below 22,120. Most Asian indices register gains. European indices trade in positive territory. And financial awareness among women grows by 42% from the previous year, highlights Niti Aayog report. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar. Market Mantra.